Hey everyone, and welcome to another episode of Poems with Friends. We are your hosts Anurag and Megha. और आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अंकित, who we actually call Bhandari. I don't know why I'm using his first name because I never do. So he is also a great fan of poetry. So I think we are going to have a lot of fun together. आज तो मजा आएगा. ठीक है, तो आज की पोएम है द फरो बाय डब्ल्यू एस मर्विन. लास्ट वीक भी हमने डब्ल्यू एस मर्विन की ही एक पोएम करी थी, द ड्रैगन फ्लाइज. एंड आई वॉन्टेड टू फाइंड अनदर पोएम by the same author, particularly because we were having a conversation about the dragonflies वाला poem, and I was trying to say कि मार्विन की poems में ऐसा कुछ होता है which does something to you, like it molds your thought process in a way. एंड जो ड्रैगन फ्लाइज वाली पोएम थी उससे अनुराग वॉज नॉट फुल्ली कन्विंस्ड. लाइक कि नहीं, ये तो काफ़ी मतलब इसमें जो बोला गया है काफ़ी क्लियर है, विच इज़ ट्रू. बट आई थिंक ये पोएम इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड आई रेड समवेयर इन अ बुक कि पोएट्री इज़ नॉट सपोज टू जस्ट से थिंग्स, लाइक से मीनिंगफुल थिंग्स. इट इज़ सपोज टू डू समथिंग टू यू. कि मतलब जब हम वो लैंग्वेज पढ़ते हैं एंड हम उस थॉट के थ्रू खुद मूव करते हैं, तो it does something to us because it makes us move through that thought process. So then we are also changed as a person. So I think I want to explore that thought here. um ठीक है, I will read it once because I've read it before. And you guys, I think Ankit, did you read it जब ये डाली थी हमने? हाँ, मैंने पढ़ी थी। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। एंड हाँ, वी कैन टॉक अबाउट इट एज वी गो फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है, I'll read it once. The Furrow by W.S. Merwin. Did I think it would abide as it was forever? All that time ago, the turned earth in the old garden, where I stood in spring, remembering spring in another place that had ceased to exist, and the dug roots kept giving up their black tokens, their coins and bone buttons and shoe nails, made by hands and bits of plates, as the thin clouds of that season slipped past grey branches on which the early white petals were catching their light. And I thought I knew something of age then, my own age, which had conveyed me to there, and the ages of the trees and the walls and the houses from before my coming, and the age of the new seeds as I set each one in the ground to begin to remember what to become, and the order in which to return, and even the other age into which I was passing, all the time while I was thinking of something different. This is such a psychedelic poem. Right. There is no full stop. There is no, actually, हाँ, yes. दैट्स जब ये मुझे इंटरनेट से मिली थी, there was a full stop in the end. But when I looked it up in the book because I wanted to get the formatting right, there was actually no full stop. That's a very interesting ग्रेट। observation. और क्या कोई और फर्स्ट फीलिंग है क्या? आई मीन काफ़ी लाइक टाइम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी लाइक टची सब्जेक्ट, राइट? लाइक कि मतलब जस्ट बाय यूजिंग द वर्ड्स ये एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई लाइक लाइक वी ऑल नो दैट वी आर लाइक एफेमेरल, राइट? एफेमेरल इज द राइट वर्ड, कि लाइक शॉर्ट लिव्ड, राइट? राइट. तो उसको बहुत ही लाइक प्यार से एंड बहुत ही पिक्टोरल वे में डिस्क्राइब कर रहा है। लाइक ही इज डिस्क्राइबिंग हिज ओन एक्सपीरियंस, लाइक व्हाइल ही इज लाइक डिगिंग द रूट्स एंड लाइक इन हिज गार्डन, एंड इन द सेम टाइम ही इज bringing that picture of that time, right? That राइट. like everything is short lived, right? So काफी इंटरेस्टिंग वे में, लाइक यू सेड अर्लियर, कि पोएट्री का काम ही होता है कि तुम्हें सोच में ले जाए। तो राइट. राइट. when you're reading that, it gives you that image ki, oh, like at first you imagine that it's just a like scene जहाँ पे like writer is just like digging the roots and thinking something, Hmm. but same time he's also thinking about something so deep and so like natural, right? Like everyone is of us are gonna die one day, we won't be here, right? So it's trying to bring that concept of how Interesting. everything is short lived.
काफी सही। आई थिंक मतलब वही फर्स्ट फीलिंग्स मुझे बहुत पसंद है कि सब लोगों की अलग अलग फर्स्ट फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि अनुराग सेड कि कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, तो इट्स लाइक साइकेडेलिक, इट्स जस्ट गोइंग ऑन लाइक अ थॉट रैम्बलिंग। यू सेड कि शॉर्ट लिव्ड वाली फीलिंग बहुत आ रही है। आई थिंक जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ी थी तो मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट हुई थी कि इट्स लाइक अबाउट चेंज। कि जब इसने बोला ना इट वुड अबाइड बाय इट एज इट वाज फॉर एवर, कि चीज़ें चेंज होंगी और उसको एक्सेप्ट करना, तो मुझे वो वाली फीलिंग्स सबसे ज़्यादा हिट हुई। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या अलग अलग फीलिंग्स हम लोगों को हिट होती हैं एट फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा उसका नैरेटिव करते हैं ताकि सो दैट वी कैन हैव दैट इमेज इन आवर हेड कि एक्चुअली वो हो क्या रहा है। कोई पढ़ेगा क्या थोड़ा सा? All right. Did I think it would abide as it was forever? All that time ago, the turned earth in the old garden, where I stood in spring, remembering spring in another place, that had seeds to exist, and the dug roots kept giving up. Their black tokens, their coins, and bone buttons and shoe nails, ठीक made by hands and bits of plates, as the thin clouds of that season slipped past grey branches on which the ठीक है ठीक early है, white petals. थोड़ा सा पढ़ देना, वो पूरा एक ही लाइन है। एंड तक वो चला like, जाएगा। that's the thing ना, उसने लिखा ही ऐसे like he's just continuing, right? Like he's like so, and like I don't know how you guys read it, but when I was reading it, I just kept reading, and it's like as if like the poet is like just taking you to the ride, right? Like you start reading, and I think there is no like stop, right? It's just a one sentence. एक ही सेंटेंस है, काफी सही लिखा है। ठीक है। Hmm. डिड आई थिंक इट वुड अबाइड एज इट वाज फॉर एवर? आई थिंक अंकित ने सही इमेज सेट करी कि जो प्रोटैगनिस्ट है ही इज थिंकिंग अबाउट अ टाइम जब वो अपने गार्डन में खड़ा था स्प्रिंग में। और द फरो, एक्चुअली द फरो इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो फरो इज वो होता है जब गड्ढा खोदते हैं सीड्स डालने के लिए, तो दैट इज द फरो। वो एक गार्डनिंग का टर्म हो गया। तो आई थिंक ये प्रोटैगनिस्ट खड़ा है और ये सोच रहा है कि उस टाइम जब मैं खड़ा था, द टर्न्ड अर्थ इन द ओल्ड गार्डन, मतलब जब मैंने मिट्टी खोद के रखी थी और जब मैं वहां खड़ा था लास्ट स्प्रिंग, तब मैं क्या सोच रहा था, ये उस बारे में सोच रहा है। कि जब मैंने मिट्टी खोद के रखी थी तब मुझे क्या ये लगा था कि वो मिट्टी हमेशा ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ऐसा। और तब जब वो गड्ढे खोद रहा था तब उसको वो मिल रहे थे, चीजें मिल रही थी, ब्लैक टोकन्स देयर कॉइन्स, क्योंकि मिट्टी में से चीजें मिलती हैं ना थोड़ी थोड़ी, वो सब कुछ मिलता है, स्टोन्स और बोन्स भी मिल सकते हैं, शू नेल्स भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है। तो ही इज थिंकिंग अबाउट द टाइम व्हेन ही फर्स्ट डग अप दैट फरो, और उसको जो जो स्टोन्स में मिल रहा था। What I really like about the first three lines is how he is immediately. Ki हम्म। why I like the psychedelic feeling is, and I'll be honest, the first three lines is the only thing I properly understood. उसके बाद जैसे जैसे हम आते गए, I was like a क्या ही चल रहा है। पॉडकास्ट में ही फिगर आउट करेंगे हम्म। कि बट कि उसने टाइम और स्पेस के साथ कितने अच्छे से खेला है। लाइक उसने कितने इजीली सेटअप कर दिया, एक बहुत विविड इमेजरी दिया है, एंड ही हैज क्रिएटेड दिस होल chaotic कि टर्न्ड अर्थ इज वेरी chaotic, राइट? कि तुम कि राइट। इट्स नॉट क्लीन, उसने काफी chaos सा सेट किया। और उसके बाद बोला कि इन अनदर टाइम अनदर प्लेस, जबकि खड़ा तो वो वही है ना। तो उसने कितना, मतलब तुम्हें बहुत ही एक अनसेटलिंग से फीलिंग में शुरू कर दिया। राइट राइट राइट, दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। बहुत अनसेटलिंग, दैट्स अ वेरी गुड एडजेक्टिव टू यूज। बहुत ही अनसेटलिंग फीलिंग है स्टार्टिंग की, कि क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि उसके पैर नहीं टिके हुए कहीं पे। मतलब एक्चुअली यस, इफ वी रीड जस्ट द फर्स्ट थ्री लाइंस, डिड आई थिंक इट वुड अबाइड एज इट वाज फॉर एवर, all that time ago that turned earth in the old garden where I stood in spring remembering spring in another place। तो अभी वो सोच रहे हैं उस टाइम जब मैंने गड्ढा खोदा था, उस टाइम भी मैं किसी और टाइम के बारे में सोच रहा था। तो कितनी डबल लीप उसने मतलब ले लिया अपने दिमाग में, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इट एक्चुअली यस क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ अनसेटलिंगनेस, कि इसके थॉट्स भी अनसेटल्ड हैं और टाइम में भी ये अनसेटल्ड है, ये सेटल ही नहीं हो पा रहा है कि इसको। जैसे हम मेमोरीज में कभी कभी जाते हैं तो हम एक के बाद एक पुरानी मेमोरीज में जाते चले जाते हैं, तो वो मुझे फीलिंग बहुत पसंद आई कि वो उसने कैप्चर करी है।
I also really liked it. And इसी में so when I was reading this poem, so I didn't know the मतलब I had to look for what does bone button means, and हम्म turns out like bone buttons are actually like found in archaeological sites. So when you are saying these things, so it adds another layer. He like राइट he's राइट also, while he's reminiscing of the time when he was like thinking about some like some time space. Now हम्म he's bringing that like idea of that like things that are found in archaeological site, which हम्म is kind of showing ki like again like उससे bringing भी that point पहले of का view. टाइम Exactly. Like short and also like short-lived, right? Like these are so a lot of these bone buttons are found in archaeological sites जहाँ पे past civilizations रह चुकी हैं, right? So he's kind of reminiscing like of that. So interesting, like काफी like levels पे levels चल रहे हैं यहाँ पे. you're saying कि एक और फोर्थ लेवल भी है जिसमें जो उसको चीजें मिल रही हैं सॉइल में से दैट डिपिक्ट एन इवन ओल्डर टाइम तो हमने हाँ 4 लेवल्स ऑफ जंप ले लिया हाँ. क्या हम जैसे एक साथ खेल रहे हैं एवरीवेयर एवरीवन. है इंटरेस्टिंग ठीक है यहाँ से आगे पढ़ते हैं दैट हैड सीज टू एग्जिस्ट कि उसने एक स्प्रिंग याद किया जो नहीं है और उसने ब्लैक टोकन्स करे शू नेल्स उसको मिले यहाँ से बढ़ते हैं आगे शू ये सब मिल गया उसको डग अर्थ में तब मिला था उसे बेसिकली देन Of that season slipped past grey branches on which the early white petals were catching their light, and I thought I knew something of age. Then my own age, which had conveyed me to there, and the ages of the trees, and the walls and the houses from before my coming, and the age of the new seeds. ठीक है As I. ये सही में ये समझ नहीं आता कि कहाँ पे. इट्स सच अ लॉन्ग थॉट कि सही में समझ नहीं आता कि कहाँ पे पॉज करके. मैं भी ये सोच रहा हूँ ये थॉट तो मर्ज ही होते जा रहे हैं एक के बाद एक. काफी सही लिखा है उसने आई थिंक ये हाँ इसने फिर थोड़े से उसमें वैसी नेचर वाली इमेजरी डाल दी कि ये मिट्टी खोद रहा है इसको बोन बटन्स मिल रहे हैं शू नेल्स मिल रहे हैं फिर उसने बोला जो थिन क्लाउड्स हैं वो जा रहे हैं और अर्ली वाइट पेटल्स वर कैचिंग देयर लाइट तो मतलब वो जो मेमोरी उसकी ओरिजिनल मेमोरी है मल्टीपल टाइम जंप्स एक्सक्लूडेड उस ओरिजिनल मेमोरी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है उस ओरिजिनल मेमोरी की वो इमेजरी भी दे रहा है सब कुछ दे रहा है विच आई रियली लाइक की मतलब जो मेमोरी के जंप्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है जो फर्स्ट मेमोरी है उसका उसको पूरा याद है कि उस टाइम क्लाउड्स कैसे दिख रहे थे उस टाइम फूल कैसे दिख रहे थे और फिर वो बोलता है कि उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि आई थॉट आई न्यू कि मुझे लगा कि आई न्यू समथिंग ऑफ एज देन कि मुझे समझ आ गया कि एज क्या है तो आई थिंक आई रियली लव दिस अबाउट दिस पोएम कि ये इस चीज को कैप्चर कर लेती है कि तुम कभी सोच रहे होते हो और तुम्हें लगता है कि ओह मुझे समझ आ गया है अब बट पता नहीं तुम्हें समझ आया कि नहीं आया मतलब आई थॉट आई न्यू वैसी वाली जो फीलिंग आती है ना कि ओ तुम सोच रहे हो फिर तुम एक और स्प्रिंग के बारे में सोच रहे हो फिर तुम्हें और आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिल रही हैं और तुम्हें एकदम से कुछ एक मोमेंट आता है जब तुम्हें लगता है कि ओ आई अंडरस्टैंड नाउ अभी मुझे समझ आ गया है बट वो इतना क्वेश्चन कि अभी इस उसमें जो the the thin clouds passing gray branches is on the same timeline as when he was standing in spring originally. वो सेम है क्या? सेम Okay. टाइमलाइन है जो फर्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी है जो वो अभी आई ओरिजिनली याद कर रहा है Hmm. While he's standing on the garden, right? Like, राइट तो उस टाइम वो खड़ा हुआ याद कर रहा है जब मैं गड्ढे खोद रहा था और तब मुझे और भी पुरानी स्प्रिंग याद आ रही थी सब कुछ मिल रहा था तब जब मैं गड्ढे खोद रहा था तब का उसको पूरा याद है कि तब क्लाउड्स ऐसे थे तब वाइट पेटल्स ऐसे थे और उस टाइम खड़े खड़े मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई हैव अंडरस्टूड एज एज अ कॉन्सेप्ट तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसको ऐसा लगा ही हैज़ अंडरस्टूड मतलब उसने ये नहीं बोला कि आई हैव अंडरस्टूड या अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है उसने मतलब एक बहुत ही रैंडम वही जो इसने बोला भंडारी ने कि एफेमेरल सा थॉट है उसकी थॉट भी एफेमेरल है वो भी एफेमेरल है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी एफेमेरल है कि एक सेकंड में आके वो चली गई True. कितनी लाइन हो गई to there? ये काफी इंटरेस्टिंग लाइन है ये क्या माई ओन एज
then was then my own age which had conveyed me to there. ऐसे कौन बोलता है? My own age which had conveyed me to there. I think what he's saying is कि because he's talking about the past, Hmm. Oh, so the interesting. fact that he can think back in that time already means he has aged, right? That aging. The Oh. very fact that he's thinking in the past, I Hmm. think वो उस चीज को रेफर कर रहा है कि वो भी तो वही है ना. Interesting. तो he A is very weird basically way of. हाँ. using age as a vehicle. एज को उसने एक vehicle की तरह ले लिया जो तुम्हें टाइम में से उठा उठा के लेके जाती है ना? काफी सही मेटाफर है ये तो, ऐसे तो मैंने कभी एज के बारे में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ही सेइंग कि जब मैं वहां था हम्म। पास्ट में तब मुझे लग रहा था क्योंकि तब मैंने ये आर्कियोलॉजिकल चीजें देखी एंड आई थॉट आई न्यू समथिंग अबाउट एज. हम्म। बट मतलब देन ही इज रेफरिंग टू. आई थिंक आई गेट व्हाट यू वर सेइंग अबाउट मरविन के सब उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं बिकॉज हम्म। टू मी इज टॉक टू मी इट सीम्स लाइक ही इज टॉकिंग अबाउट हिज नाइविटी कि उस वक्त ही वाज फीलिंग वाओ कितनी एज हो गई है ओह अच्छा। but that was past और अब he has grown मतलब he has come here and now he's thinking back at the time when he thought about aging कि is what तब I understood. काफी complex I जब think. उसे एज उस टाइम उसे लगा कि समझ आया है, बट अब उसको लग रहा है कि उसको जो भी समझ आया था वो नेविटी है शायद। आई लव हाउ यू टेक एवरीथिंग एंड पुट अ फीलिंग टू इट। जैसे यू सेड कि ओरिजिनल लाइंस में बहुत ही अनसेटलिंगनेस है, और फिर इन लाइंस में ऐसा लग रहा है कि उसको अपनी नेविटी रियलाइज हो रही है, कि तब उसे लगा था कि उसे समझ आ गया एज क्या होती है। वेरी इंटरेस्टिंग। आई But I थिंक think क्योंकि he's not directly saying it it's possible इसका कोई और meaning हो. हाँ, definitely. I think with Marvin, that is the best thing. We don't have to go into getting the right meaning. It's about what hits you and what it does to you. I think I love, मेरे को जैसे ये मेटाफर, मतलब मुझे वो बहुत पसंद आया कि मतलब जैसे उसने बोला ना कि एज विच हैड कन्वेड मी टू देयर, इट इज लाइक कि एज किसी गाड़ी की तरह है जो मुझे टाइम में से पास्ट में से उठा के प्रेजेंट में ले आई। कितना वो लगता है ना, माइंड में से बल्ब से जल जाते हैं। हाँ कि अग्री कि हाँ कितना अजीब सा थॉट है कि आई एम लाइक वाओ कैसे सोच रहा था इंसान. ये इससे like I similar thought like while we are discussing this, so like this reminds me of the fact like जैसे like when we talk about कि oh like back in the days right, तो हम लोग ऐसे past में सोचते हैं and then sometimes I realize कि यार अब like we are so grown up right, like ऐसे like Right, so it's kind of giving that kind of essence कि like thinking about the past and then you're right. realizing कि oh damn like now you have grown old right, like बुढ़ापा आ गया है तो like that essence थोड़ा कन्वे हो रहा है उस चीज से. इंटरेस्टिंग। हाँ, हम पास्ट में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हमें लगता है कि सब समझ आ गया है, और अब हम सोच रहे हैं तो हमें वही नेविटी लग रही है, वैसा कह रहा है ना तो। एक इंटरेस्टिंग। और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि what I really like is the personification of extremely random thing कि as you said कि age is a vehicle and then suddenly made me realize कि कितना weird thought इसलिए लग रहा है क्योंकि एज कैसे व्हीकल हो सकती है. एज कन्वे कैसे एज हाउ कैन एज बी एन एक्टिव थिंग. एज तो होती है एंड देन आई रियलाइज्ड कि देन देयर आर डग रूट्स दैट आर गिविंग अप थिंग्स. मतलब in this world these very abstract passive thing have a lot of activity going on that they are doing. And the Dug Roots kept giving up their black tokens. Huh? Very interesting. Right. I thought I knew. ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। My own. So यहाँ से start करते हैं. Which had conveyed me to there, and the ages of the trees and the walls and the houses from before my coming, and the age of the new seeds, as I set each one in the ground to begin to remember what to become, and the order in which to return, and even the other age into which I was passing, all the time while I was thinking of something different. Like I don't know about you guys, just like whenever I'm reading this, every time it's like my brain is going on a loop. Ki like ऐसे like I don't know, like it's like interesting, बहुत ही प्यारी and like प्यारी is not the word I would say, like magical realism is the word right that comes I think where like you're trying to
you're talking about something like a natural event, but Hmm. in that you are adding like some fiction, right? But at the end of the Right. day, it's still like real, right? Like whatever he's saying is real. It happens, right? Time passes, everything, but they he's trying to add some beauty to that, right? Like तो काफी Definitely. interesting like वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली, मैंने उस तरीके से देखा नहीं था, अब मैं देख पा रही हूँ कि इस पोयम में भी काफी मैजिकल रियलिज्म है, और उसकी लास्ट पोयम में भी, ड्रैगन फ्लाइज में भी था, आई थिंक हाँ दैट इज हिज स्टाइल एंड विच इज अमेजिंग। एंड जैसे डग रूट्स केप्ट गिविंग अप, वाइट पेटल्स वर कैचिंग देयर लाइट, माय ओन एज हैड कन्वेड मी, इन सब चीजों में भी कितना मैजिक सा है ना, जैसे अनुराग ने बोला कि जो नॉर्मल चीजें हैं वो कुछ मैजिकल सा कर रही हैं, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत ही एक मुझे अब अलग तरीके से हिट करी पोयम, कि वो तुमने एक गड्ढा खोद, खड़े होके गड्ढा खोदने के इवेंट को कितना मैजिकल सा बना दिया तुमने, ये सोच के कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं खड़ी हूँ और मैं गड्ढा खोद रही हूँ और एकदम दुनिया में मैजिक हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने मैजिक मशरूम खा के ट्रिप कर हाँ रहा agreed agreed कुछ totally तो चल रहा है। भाई and like honestly like is the way इसका loop कर रहा है ना ऐसे like जैसे ये लाइन पढ़ो from before my coming, so like when I was in past and the age of new seed, so now future, as I set each one in ground to begin, so now he's back, right? He's setting seeds on the ground, so like अलग ही like अलग अलग लेवल पे चल रहा है what to become and in order and the order in which to return. यस, बट आई थिंक हम, मुझे भी जैसे मंडानी ने बोला, हर बार मैंने जब ये पोएम पढ़ी, मैंने क्योंकि 2-3 बार पढ़ी डालने से पहले भी, और हर बार ही ऐसा लगता है कि कोई एक अलग पार्ट ऑफ द पोएम तुम्हें हिट कर रहा है। जैसे इनिशियली मुझे चेंज वाला पार्ट हिट करा, बट सेकेंड टाइम जब मैंने पढ़ी तो ये पार्ट मुझे बहुत हिट करा कि आई एज आई सेट ईच वन इन द ग्राउंड टू बिगिन टू रिमेम्बर व्हाट टू बिकम। ये कैसी बात है? टू बिगिन टू रिमेम्बर व्हाट टू बिकम, इट फील्स लाइक कि मान लो कि मैं अगर कुछ बनने वाली हूँ, लेट्स से अगर मैं राइटर बनने वाली हूँ या कुछ भी बनने वाली हूँ, तो इट्स लाइक कि वो चीज़ मैं ऑलरेडी थी पहले कभी पास्ट में, एंड आई जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि मैं वो थी, तो देन आई विल बिकम इट। तो सीड्स को रिमेम्बर करना है कि वो पेड़ थे, और फिर वो पेड़ बन जाएंगे। वाह, ये क्या बात कह दी। सही में ये क्या बात कह दी कि इतना ज्यादा वो है कि होता है ना कि बॉडी हैज अ मेमोरी वाली फीलिंग है इसके अंदर कि राइट। यू के अनकॉन्शियस में बहुत कुछ चल रहा है। हम्म। वो कितना मतलब makes you feel like you are part of this bigger consciousness. It's just so interesting. मतलब तो राइट। I really cannot get away from the कि इंसान ने आइयो के पोएम लिख किया। ये वाली इसके लाइन्स पास तो मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल लगी, मतलब ये बंदा पढ़ता भी था, मतलब इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट अ लॉट ऑफ इंग्लिश पोएट्स वर इनटू ईस्टर्न मिस्टिसिज्म। ये बंदा भी काफी बुद्धिज्म के बारे में पढ़ता था, बट दीज पर्टिकुलर लाइन्स आर सो स्पिरिचुअल। टू बिगिन टू रिमेम्बर व्हाट टू बिकम, कि जो जो भी तुम पेड़ बन रहे हो अगर एज अ सीड, तो तुम्हें वो रिमेम्बर करना है कि तुम पेड़ थे, क्योंकि तुम सब कुछ ही थे। एंड द ऑर्डर इन विच टू रिटर्न, इस लाइन पे मैंने बहुत ट्रिप मारा है कि इट इज लाइक कि जब तुम्हारी डेथ होने वाली है तो इट इज ऑलमोस्ट एज इफ कि, मतलब मैंने तो एक अलग ही लेवल पे ट्रिप मार लिया। मुझे ऐसा लगा कि मतलब जैसे होता है ना कि तुम अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं तुम्हारे, उसमें तुम्हें कुछ फील हो रहा होता है, या यू आर अ सर्टेन आर्केटाइप, लेट्स से यू आर द हीरो आर्केटाइप, यू आर द फूल आर्केटाइप। तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी जब तुम्हारी डेथ होने वाली होती है तो इट इज लाइक एक सर्कल की तरह है कि तुमने हीरो आर्केटाइप से शुरू किया, फिर तुमने मल्टीपल आर्केटाइप्स लिए, और फिर तुम इन द यू हैव टू रिटर्न इन अ सर्टेन ऑर्डर, कि तुम्हें वो सब चीजें फिर से करनी पड़ेंगी जो तुमने पहले करी, और फिर तुम मर जाओगे। तो वो एंड द ऑर्डर इन विच टू रिटर्न पे काफी ट्रिप मारा मैंने तो, कि इट इज लाइक कि, और यू कैन सी दैट ऑल्सो, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि लाइफ में पैटर्न्स होते हैं और साइकिल में जाती है लाइफ, एंड आई कैन सी दैट विद माई ओन लाइफ ऑल्सो, कि ऐसे पैटर्न में या एक साइकिल में जाती है लाइफ। तो इट इज लाइक तुम बार बार वही चीज कर रहे हो, एंड देर इज एन ऑर्डर इन विच यू विल डू इट अगेन, एंड देन यू विल रिटर्न टू नथिंगनेस या जो भी है। I realized हम्म। कि when you were talking about it and it is so apt कि I understand it much better now that you say it, but I just realized कि this poem seems to be very anti-free will, कि it's like तुम्हारी डेस्टिनी तो सेट है मतलब
तुम्हें लग रहा है कि तुम रैंडम रैंडम लाइक यू वर थिंकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट या वट एवर, तुम्हें दुनिया में कुछ भी लग रहा हो, तुम एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ थिंग हो एंड बस तुम इस चक्र में पड़े हुए हो, which is like wow. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हमें इसकी और पोएम्स पढ़नी चाहिए देखने के लिए कि फ्री विल के बारे में क्या सोचते हैं। इसमें so I have a question कि when he is saying in which to return, so what's the like the order in which to return, तो return where, like that I like I don't know, I didn't get that part, like is मुझे it तो like रिटर्न टू नथिंगनेस टाइप का लगा, मतलब कि अच्छा रिटर्न टू दैट सिंगुलैरिटी और वैसा सा। I see मेरे को वो वैसे व्हील ऑफ टाइम वाली फीलिंग आ रही थी कि तुम हाँ हर बार उस एज को रिपीट करते जाते हो। हम्म मतलब आई अंडरस्टूड इट एग्जैक्टली एज यू सेड कि ट्री टू सीड टू ट्री, के अब जब तुम मरने वाले हो, जब तुम सीड में बनने के, यू हैव टू रिमेम्बर कि जब तुम राइट सीड से राइट। ट्री बन रहे हो तो सीड की भी तो डेथ हो रही है ना, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इनटू ट्री एंड नथिंग एल्स। तुम उसके बाद कोई लाइन नहीं बन जाओगे, तुम्हें ट्री ही बनना है। राइट राइट राइट, तो उस ट्री टू सीड टू ट्री इज सच अ ग्रेट वे टू पुट इट कि यू हैव टू रिमेम्बर दैट यू आर अ ट्री फर्स्ट, और फिर तुम एक ऑर्डर में वापस जाओगे और फिर तुम वापस रिटर्न हो जाओगे उसी चीज पे या डेथ पे या सिंगुलैरिटी पे, वैसे वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो मतलब उसने, और मतलब ये स्नीक इन कर दी उसने लाइंस, रैंडमली गार्डनिंग कर रहा है वो और पता नहीं कहाँ से उसने वो स्नीक इन सी कर दी, ऐसा लग रहा है लाइंस की पर सीड कितना से। सही है ना कि क्योंकि द फरो इज सच एन एप्ट थिंग कि to me it does not feel sneaked in. To me it feels like a very vulnerable part of the whole journey. When you dig things up, it's a very destructive time. And he's like pondering over the whole cycle, क्योंकि उसके बाद तो चीजें होने की ना, उसके बाद तो तुम साइकिल में फंस गए, अब तो तुम डर रहे पे चल रहे हो। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट कि यू आर सेइंग कि जो गड्ढा खोदने का एक्शन है दैट इज क्रिएटिंग केओस इन द वर्ल्ड, मतलब उससे कोई चीज स्टार्ट हो रही है। तुमने जब सीड लगाई तो तुमने एक चीज स्टार्ट कर दी। इट ऑल्सो कैन कनेक्ट बैक टू व्हाट यू आर सेइंग अबाउट अनसेटलिंग फीलिंग, कि इनिशियली वो चीज अनसेटलिंग है जब तुमने गड्ढा खोदा, और फिर उसके बाद क्योंकि तुमने वो चीज स्टार्ट कर दी है तो अब वो एक व्हील ऑफ टाइम फिर से स्पिन होना शुरू हो गया है वैसा। इंटरेस्टिंग यार, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अगर यू पीपल वर नॉट देयर आई वुड नॉट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। मैं इसको पढ़ता एंड आई वाज लाइक वाह वाह क्या बात कह दी, एंड आई वुड हैव मूव्ड ऑन। हाँ मुझे भी पसंद है पोएम के साथ बैठना तो काफी ज्यादा। ठीक, आई थिंक ये वाली भी लाइन डिस्कस करते हैं, मुझे लास्ट वाली लाइन भी बहुत अच्छी लगी। इवन द अदर एज इनटू व्हिच आई वाज पासिंग ऑल द टाइम व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट। भंडारी को तो बहुत ही मजा आ रहा है। अलग ही लेवल का यार, लाइक वाई सो एसेंशियली ही इज सेइंग कि ये सब जितनी भी फिलोसफिकल डिस्कशन हमने किया, दिस वाज हैपनिंग व्हाइल ही वाज लाइक गार्डनिंग, Yeah. and like also he was thinking of something like in that moment he is thinking like अलग ही लेवल का कुछ टाइम का चल रहा है कि like while he is doing that, and then he was thinking of something different, and then he has this thing going on, like पूरे प्रोसेस चल रही है इसकी राइट राइट। बहुत ही like और वो mind भी है ना कि मतलब वही कि वो कह रहा है कि मैं भी एक अदर एज में पास कर रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम जब खड़ा हूँ तो टाइम तो पास हो ही रहा है, तो मैं भी और बूढ़ा होता जा रहा हूँ, बट मैं कभी प्रेजेंट नहीं हूँ, मतलब कि उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। मतलब उसने पूरा एक मेटा कमेंट्री मार दी इस बात पे कि जब भी मैं कुछ कर रहा होता हूँ मैं कुछ और ही सोचने लगता हूँ, और उस एज में प्रेजेंट नहीं रहता मैं। Oh, I connect this so well with कि I'll call you Ankit because I have never called you Bhandari. कोई नहीं हाँ। कि when he said कि this is all magic realism, but ये सब हो रहा होता है, and it to me feels like a flipping of कि तुम्हारी दुनिया चल रही है और सबकॉन्शियस में ये सब चीजें चल रही है। अब उसने सबकॉन्शियस को मेन बना दिया, और while I was thinking of something different is the conscious part जो अभी थोड़ा फ्लिप कर गया, कैसे अपसाइड डाउन पे चले गए हैं हम। अभी हम सबकॉन्शियस को देख रहे हैं और जो एक्चुअल वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं चल रहा है, वो बस लास्ट के 4 वर्ड्स में चल रही है। यू आर सेइंग कि ही इज सडनली अवेयर ऑफ हिज ओन, ये जो थॉट स्पाइरल में गया वो, उसने सडनली उसके ऊपर एक लाइट शाइन कर दी, कि उस पे एक अवेयरनेस शाइन कर दी उसने कि मैं But to me रैंडम it feels थॉट्स like कर। everything except the the second part of the last line was subconscious,
जिसको हम यूजुअली कॉन्शियस वेयर में खड़े होके डिस्कस कर रहे होते हैं, टू मी इट फील्स लाइक वो सबकॉन्शियस फर्स्ट उसने पूरा कमेंट्री दी और बोला कि बट ये सब सबकॉन्शियस में चल रहा है, उसने बस ऐसे हल्के से धकेल दिया कि राइट राइट राइट। पर्सपेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे इसका, कि तभी इतनी ट्रिपी लग रही है ना, क्योंकि इन द रियल वर्ल्ड वी डोंट थिंक लाइक। मतलब मुझे इससे बहुत वैलिडेशन भी मिली कि आई थिंक मैं हमेशा ये वर्ड यूज करती हूँ, बट ऐसी पोएम्स पढ़ के वो थोड़ी वैलिडेशन मिलती है इन द सेंस कि रैंडमली हम लोग भी तो कितना डे ड्रीम करते हैं ना, बट डे ड्रीमिंग एंड रैंडमली थिंकिंग अबाउट थिंग्स विच डोंट कंक्लूड एनी वे और विच डोंट लीड यू टू एनीथिंग, वो चीज़ वो डिसुएड करा जाता है तुम्हें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यू ऑल्सो टेल योर सेल्फ यू आर ऑलवेज वांटिंग टू थिंक अबाउट प्रोडक्टिव थिंग्स और वांटिंग टू थिंक इन अ लीनियर फैशन ऑल्सो। तो इस टाइप की पोएम्स पढ़ के एक वैलिडेशन मिलता है कि कुछ भी तुम रैंडम, ये जो तुम्हारा थॉट स्पाइरल है वो भी एक बढ़िया चीज़ है। मतलब वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब मैं अगर कभी गड्ढा खोद रही होंगी तो आई विल लेट माई सेल्फ गो इन टू अ थॉट स्पाइरल। पोएम तो बहुत अच्छी है, आई लव्ड इट। इमेजरी इस बंदे की टॉप नॉच। आई थिंक इमेजरी भी नहीं, द ओरिजिनल थॉट इस बंदे का टॉप नॉच। आई थिंक इट्स लाइक आई वुड लव टू हैव मेट दिस पर्सन, कि एक ऐसा इंसान जो रैंडमली गड्ढा खोदते खोदते इतने थॉट स्पाइरल में अपने आप को अलाउ करता है जाने देने को। दैट पर्सन इज सो फ्री। वरना तुम अगर गड्ढा खोद रहे हो तो तुम ये सोचते हो कि अभी मुझे 4 गड्ढे और खोदने हैं, 10 बीज और लगाने हैं, अभी फिर मुझे उन्हें पानी डालना है। यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट टास्क टू डू। मतलब राइटिंग समथिंग लाइक दिस एंड थिंकिंग लाइक दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम विद टाइम एक्चुअली, कि तुम अपने टाइम को लेके कितने फ्री हो कि तुम गड्ढा खोदते खोदते कुछ रैंडम ही थॉट स्पाइरल में चले गए हो जिसका कुछ कंक्लूजन भी नहीं आया। मतलब आई ऑल्सो गो इनटू थॉट स्पाइरल्स बट समटाइम्स आई एम सो ऑब्सेसिव अबाउट कमिंग टू अ कंक्लूजन टू माई थॉट्स, कि जैसे जब मैं तेरे को आगे जनरली चीजें बताती हूँ कि ओ मुझे ये रियलाइज हुआ या वो रियलाइज हुआ है, लाइक आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू कंक्लूड माई थॉट्स, बट दिस पर्सन इज लाइक आई थॉट आई न्यू समथिंग ऑफ एज देन। पता भी नहीं मुझे क्या पता चला, मैं रैंडम एक थॉट स्पाइरल में घूम के आ गया और कुछ हुआ भी नहीं उससे। मतलब ये मुझे बहुत बढ़िया लगा इस पोएम के बारे में। and that is what I feel The कि like conclusion is not, oh sorry, you were saying? नहीं, continue. कि कंक्लूजन वाज नॉट नेसेसरी, वो बस अपनी Right. जर्नी पे ट्रिप मार रहा है कि यार मेरे को तो मतलब मैंने and इंसेप्शन में होके आ गया हूँ मैं। and I think that's the whole point of a like kind of a like poem, right? Like you don't have to conclude, right? Like we are not running a project here which needs a conclusion, right? So I think that's where like poems like these are like बोल सकते हो कि like it's like you are just, since you are existing as a human, you are capable of processing all that information जो भी तुम thoughts कर रहे हो, and now you captured them, right? So that's like the imagery of that thought in words, right? So it doesn't have to conclude, like there's no rule ki like you have to conclude or you have to get somewhere. He's not trying to even like prove us कि भाई हाँ यही समय का काल है, like this हाँ, is कुछ right, like ज्ञान दे दिया उसने। हाँ, ही इज लिटरली सेइंग भाई मैं तो आई वाज डूइंग ये गार्डनिंग और मुझे ये ख्याल आया, एंड व्हाइल आई वाज हैविंग दैट ख्याल आई आल्सो थॉट दिस एंड एवरीवन डाइज, राइट? like it's like literally in simple words. So there's a like kind of beauty to that thing. Right, and Expression. that is what it makes it so like revisitable as a poem, कि तुम इस पोएम को कितनी बार भी पढ़ सकते हो और हर बार तुम्हें एक अलग ही लाइन हिट करेगी। कि जैसे डिड आई थिंक इट वुड अबाइड एज इट वाज फॉरएवर, कभी मुझे हिट करी कभी हिट करी कि यही टाइम ओन एज हैड कन्वेड मी, या मतलब क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पाइरल टाइप की पोएम है उसका कुछ मतलब नहीं है, तो यू कैन टर्न ऑफ योर ब्रेन। मतलब जैसे हमने यीट्स की कुछ कुछ पोएम्स करी थी उसमें हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया था, बट ऐसी पोएम में मुझे बढ़िया लगता है कि यू कैन टर्न ऑफ योर एनालिसिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन, कि ओ दिस इज व्हाट ही मेंट टू से, एंड यू कैन जस्ट गो विद हिम ऑन दैट जर्नी ऑफ थॉट, कि तुम उस थॉट की जर्नी को खुद ले सकते हो। I think that does need effort though. Okay, it's not कि I didn't consider it turning off brain. I think I have to say कि given we had the space to discuss it, but कि तुम्हें थोड़ा वही
मरविन जैसे फ्री फील करना पड़ेगा, क्योंकि उसके थॉट्स इतने रैम्बलिंग है कि अगर तुम उसको बहुत रिजिड तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हें मेरे को नहीं समझ आया पहले 3 रीडिंग्स में कि क्या चल रहा है। तो मुझे थोड़ा समझ मेरे को उस फ्री फ्लो में जाना पड़ा टू गेट कि भाई वो कहाँ का बात क्या चल रही है एग्जैक्टली। हम अरविंद पढ़ते रहेंगे तो शायद हम हो जाएं इतने थॉट में इतने फ्लूइड हो जाएं। फिर हम भी ऐसे गार्डनिंग करते करते हमें भी एक दो ख्याल आ जाएंगे। थॉट आ जाएंगे। कैसे हम ऐसे कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग करते करते हाँ यार कोडिंग करते करते कीबोर्ड पता है। किस से मेटल से बना होता है ये सोचा मैंने। मुझे ऐसा लगा। सही है। ठीक व्हाट है। इज योर करंट फेवरेट लाइन? भंडारी से स्टार्ट करते हैं मुझसे, मैं भी सोचती हूँ करंट फेवरेट हाँ, लेट लाइन। मी थिंक, क्योंकि कुछ कुछ काफी मतलब प्यारी प्यारी लाइक बहुत ही नाइस लाइंस हैं दैट हिट हार्ड। लेट मी सी। आई थिंक आई वुड स्टिल गो विद यही वाली लाइन, क्योंकि इस पे मैंने काफी ट्रिप मारा था कि टू बिगिन टू रिमेम्बर व्हाट टू बिकम एंड द ऑर्डर इन विच टू रिटर्न। ये मुझे हम्म। अच्छी लगी। किट हाँ, ये थोड़ा है लाइक थोड़ा टाइम के कॉन्सेप्ट पे खेल रहा है, तो दैट्स डेफिनेटली। सो आई थिंक दैट वन जो लाइक मेघा तुमने बोली, बट उससे पहले आई आल्सो लाइक द फर्स्ट वन, लाइक डिड आई थिंक इट वुड बी हाँ। इट वुड अबाइड एज इट वाज फॉरएवर, क्योंकि इट्स आल्सो लाइक इट दैट इट्स आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ना, कि लाइक आई थॉट कि like, and it's also something about our, let's say, as a human being, our personalities and all these things, everything change, right, with हम्म। time. Like we were like 10 years down the lane, who we were as a person might differ from who might be as a, so like it is also kind of a reflection on that, right? Did I think it would abide as it was forever, right? Did I think that I will be like this forever? No, I हम्म। will change, right? So like when I first read that, it gave me that like, oh shit, like this is real, right? This is real. Right. हाँ, मुझे भी एक्चुअली वो लाइन बहुत ज्यादा हिट करी थी, क्योंकि उस टाइम मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही थी। तो फिर मुझे जब मैंने लाइन पढ़ी तो मुझे लगा शिट यार, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी क्या फिर से। यस मित्तल, यू हैव टू रिटर्न। नो नो आई डोंट नो, फिर मैं Change is a सोचने part लगी of. किस ऑर्डर में रिटर्न करना है मुझे। व्हाट वर यू सेइंग? योर फेवरेट लाइन। और मेरी फेवरेट लाइन तो बहुत ही वियर्ड लाइन है, शू नेल्स मेड बाय हैंड। ओह, एंड शू नेल्स मेड बाय हैंड्स। ओह। लाइक मैंने तो इस पे बहुत ट्रिप मारा था ऐसे कि चल क्या रहा है इसके दुनिया में, क्या हो रहा था पहले, क्या इंटरेस्टिंग। कि इट मेड मी लेजिटिमेटली फील लाइक क्या कोई सिविलाइजेशन थी जिसमें शून्यर्स वर मेड बाय हैंड। मतलब द एंशियंटनेस एंड द अदर वर्ल्डलीनेस वाज वेरी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट कि दुनिया में क्या क्या होके चला गया और हमें पता भी नहीं चलता। इससे वो मैजिक भी बाहर आ रहा है कि कुछ तो अदर वर्ल्डली मिस्ट्री सा हो रहा है कुछ तो। कि मेरे को कि डग रूट्स केप गिविंग अप, मेरे को वो पूरा थॉट काफी इंटरेस्टिंग लगा। मेरे को बहुत ऐसे ऐसे लगा कि ये लीजिए हम आपको दे रहे हैं टाइप्स। बट उसके बाद चूनेल्स मेड बाय हैंड्स में तो मेरा यही हो गया कि ये क्या चल रहा है। और आई एम प्रीटी श्योर ये रियल होगा किसी दुनिया में। सो उस पे मैं अलग ही खुश हो गया। तो इस लाइन का अनदर लाइक ब्यूटी यही है ना कि लाइक ही इज काइंड ऑफ रिलेटिंग दैट लाइक डग रूट्स एंड ऑल टू द वही आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जैसे जब तुम जाते हो एंड यू ट्राई टू इमेजिन, अच्छा यहाँ पे ये हुआ करता था, राइट? तो यू आर काइंड ऑफ ट्रैवलिंग इन अ बैक इन टाइम, राइट? एंड दैट्स व्हाट ही इज लाइक काइंड ऑफ कैप्चरिंग। तो वो काइंड ऑफ मैजिकल रियलिज्म ऐसे बना रहा है, लाइक यू सी ऐसे जैसे लोग ग्रेव्स में करते हैं, राइट? लाइक पीपल गो ऐसे जहाँ पे ग्रेवयार्ड्स होते हैं, जाएंगे एंड लाइक दे फील दैट ओ लाइक दिस यूज्ड टू हैपन, ऐसा दिस, हुआ होगा। तो वो लाइक डेफिनेटली दैट्स अ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग लाइन ऐसे लाइक शू नेल्स मेड बाय हैंड्स, क्योंकि लाइक इन सम जनरेशन दे यूज्ड टू मेक इट बाय हैंड ना, तो ही हम्म। इज लाइक ब्रिंगिंग अस बैक टू द पास्ट कि लाइक, सो या डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। और मतलब वही डेथ से वो भी चेंज वाला कॉन्सेप्ट भी कितना ज्यादा अंडरलाइन हो गया है कि ये सब लोग तो मर गए। बट एक लास्ट चीज जो मैं बात करना चाहूंगी इसकी, समथिंग दैट आई पुट ऑन द ग्रुप, क्योंकि इसमें टाइम की इतनी बात थी कि वी वर डिस्कसिंग ना कि लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में टाइम अलग अलग वो होता है कि ग्रीक्स जो है वो टाइम को इंग्लिश लोगों से अलग मतलब देखते हैं कि जैसे नॉर्मली लोग सोचते हैं कि
हम लोग जो है वो टाइम में चल रहे हैं, तो पास्ट हमारे पीछे और फ्यूचर हमारे आगे है क्योंकि हम चल रहे हैं। ग्रीक लोग ऐसा समझते हैं कि वो स्टिल खड़े हुए हैं और टाइम उनके थ्रू जा रहा है एज एन एरो। तो पास्ट जो है वो आगे जा चुका है और फ्यूचर जो है वो पीछे है अभी, क्योंकि वो आगे मतलब वो गया नहीं है, हमारे थ्रू नहीं गया है वो बेसिकली। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मतलब आई थिंक इस पोएम ने मुझे रिमाइंड कराई वो चीज़ कि लैंग्वेज, मतलब आई वुड लाइक टू, इससे मुझे वो इंट्रीग हो गया कि ग्रीक लोग अगर, क्योंकि लैंग्वेज से तुम्हारा ब्रेन थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, कि जैसे थॉट्स तुम्हारे किस लैंग्वेज में होते हैं, हम लोग जनरली हिंदी में सोचते हैं वैसा। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ग्रीक लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो कितनी ज़्यादा थिंकिंग चेंज हो सकती है उससे उनकी, कि पूरा टाइम का इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही वो इतने अलग तरीके से सोचते हैं। Oh, very interesting. Do we want to look at these other languages और उनकी transliterated poems? हाँ, आई थिंक कि आई कैन कैसे लुक एट। लोग, Where did काफी you अच्छा आइडिया ये कि लोगों के लैंग्वेज कि एक होती है ट्रांसलेशन जिसमें वो उसका वो थोड़ा वो कर देंगे, इंग्लिश में कर देंगे, बट अगर वो ट्रांसलिटरेटेड है तो वी विल बी लाइक चल क्या रहा है एग्जैक्टली मतलब कि ये क्या थॉट हुआ। ट्रांसलिटरेटेड क्योंकि मतलब वर्ड बाय वर्ड ऐसा? हाँ, क्योंकि अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो तो अपने टाइम के आउटलुक को भी मैप कर देंगे ना, बट अगर ना किया तो दिस इज इंटरेस्टिंग। आई थिंक आई कैन ये ट्राई लुकिंग फॉर सम ग्रीक पोएट्री एंड सी कि उसमें कुछ ऐसा दिखता है क्या हमें। So, Megha, question for you: how did you get where did you get that Greek thing from? Is this like this person was Greek person or like नहीं, how एक did? मैं एक्चुअली मैं उस टाइम एक बुक पढ़ रही थी, अच्छा लिंग्विस्टिक्स के अच्छा, ऊपर एक बुक है, मतलब I रैंडमली see. उसी टाइम मैं ये बुक पढ़ रही थी, उसमें ऐसा लिखा था Oh, कि I see. क्या अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग टाइम को भी अलग अलग देखते हैं। Oh, I see, I see. So when we talk about language, इससे मेरे को विटगेनस्टीन करके एक जर्मन फिलोसोफर है, काफी था, सॉरी, उसका याद आता है। उसने बोल रखा है कि द लिमिट्स ऑफ माय लैंग्वेज इज द लिमिट्स ऑफ माय वर्ल्ड। ठीक है, हम्म। तो इस टाइप से बहुत ही फेमस कोट है उसका। एंड विच इज एसेंशियली अभी तुम्हारा ये एआई रिसर्च में भी अभी काफी चल रहा है, राइट? कि बोल रहे हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, राइट? हम्म। क्योंकि language is just a tool which we use to do things, but the complex world out there cannot be. And I think we have also talked about this before, Mega, in our conversations, right? Ki we cannot express those things, इन there are things in लैंग्वेज। the world out there which are can be so complicated, right? Like time, which cannot be expressed in words, right? And राइट। when we talk about all this thing, तो ये poem वहाँ पे भी थोड़ा hit कर रही है कि he's trying to, it's he in his language maybe he's trying to communicate that concept of time, right? Or change, right? तो जो भी हम वो बात कर रहे हैं लूप की, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो हम्म। वो काफी हाँ, आई इंटरेस्टिंग लव दैट कि यू बॉट इट बैक टू द पोयम, क्योंकि मैं भी वही कहना चाहती थी कि इस टाइप की पोयम्स इसलिए आर सो यूजफुल बिकॉज ठीक है वो इंग्लिश में है, बट उसने लैंग्वेज को ही ऐसा बेंड करके यूज किया है। पोएट्री का जनरली सबसे बड़ा पावर यही है कि लैंग्वेज को ऐसा बेंड करके यूज करो कि उससे अलग ही फीलिंग्स आए, मतलब जो तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज यूज में नहीं आती हैं। तो उसने कैसे खूबसूरती से बेंड किया है कि यू कैन फील दैट डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ टाइम। इतने सारी चीजें तुमने अपने हेड में होल्ड करी हैं, मतलब while you are reading this poem itself you are holding so many images in your head of him standing in the garden, of an ancient civilization which is dead, of him thinking about himself standing in the garden। तो तुम्हारे माइंड में वो सब इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब वो इंग्लिश से ही कर रहा है बट इंग्लिश को ऐसा यूज कर लिया उसने कि वो अलग अलग इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं तुम्हारे माइंड में। कि कि हाँ कि पोइट्री इज सपोज टू डू दैट, पोइट्री इज नॉट सपोज टू बी ग्रामेटिकल, बट हियर ही इज काइंड ऑफ एक्सपैंडिंग द वोकैबुलरी। राइट, एग्जैक्टली, यस, सही है। ठीक है, आई थिंक तो ग्रीक पोएट्री पे रिसर्च करना है मेरा होमवर्क थोड़ा सा। लेट्स सी व्हाट वी कम अप विद। और मजा ही आ गया पोएम। है ना, सही पढ़ना बहुत। ओके, थैंक्स गाइस, लेट अस नो आपको कोई और ऐसी माइंड बेंडिंग पोएम्स पता हो तो, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। बाय बाय।